بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امیر افضل گلزار, آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز. ہمارے 9 منتخب MPA ہیں اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کی ساری زندگی جو ہے وہ انسانیت کی خدمت میں صرف ہو چکی ہے. میرے پاس تو شاید وہ الفاظ نہ ہو کہ میں ان کا تعارف کرا سکوں. ان کی شخصیت ہی ان کا تعارف ہے. منیر خان لغمانی ہیں, یہ ممتاز قانون بھی ہیں, یہ بار کونسل ایسوسیشن مانسرا کے متعدد بار یہ وہاں پہ صدر رہے ہیں. اس طرح اور بہت سارے عہدے ان کے پاس رہے ہیں. تحصیل ناظم بھی رہے ہیں, ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں. بلکہ جتنے عہدے آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ سارے انہی کے ساتھ رہے ہیں. اور اس طرح جو ان کا مقابلہ ہوا ہے وہ بڑا ٹف تھا. یہ پاکستان مسلم تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انہوں نے بڑی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے اور یہ پہلی دفعہ KPK اسمبلی کے ممبر منتخب بھی ہوئے ہیں. ان کا تجربہ, ان کی خداداد صلاحیتیں, یہ ساری انہی سے جاننا چاہیں گے. اور جب ان کو یہ 5 سال مکمل ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. تو یہ ان کیمرہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں تو میں گزشتہ 30 سال سے ہر MPA MNA کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے, ان کے ہر چیز میرے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ڈسٹرکٹ میڈیا مانسرا الرحمن الرحیم. شکریہ میر افضل گلزار صاحب کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا, اور آپ کے توسط سے, اس میڈیا کے توسط سے میں اپنے لوگوں, اپنے ان خیر خواہوں جنہوں نے اس الیکشن میں میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا, میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے حلقہ کے ان عوام کا جنہوں نے مجھے بے پناہ محبت دی ہے. اور اب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ یہ میرا ایک امتحان ہے, میری ایک آزمائش ہے کہ میں ان کی یہ محبتیں کس طرح لوٹا سکتا ہوں. بہرحال مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری مدد فرمائے گا, اور انشاءاللہ میں اپنے علاقہ کے عوام کی خدمت کروں گا انشاءاللہ, اور اللہ ہمیں اس امتحان میں بھی کامیاب کرے گا. اچھا وکیل صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ کی تحصیل جو ہے وہ 2005 کے زلزلے میں متاثر ہوئی ہے, اب تک وہ بحال نہیں ہو سکی, اس طرح کا لوگوں کو وہ ریلیف نہیں مل سکا, اور اس پہ بہت سارے بلند و بانگ دعوے بھی ہوتے رہے. بہت سارے چیلنجوں کا سامنا ہے. بکریال سٹی ہے, بہت سارے ڈیمز بن رہے ہیں, اربوں خربوں روپے کی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. بجلی کا پرابلم ہے, وہاں پہ ٹیکس بھی پورے لیے جاتے ہیں, گورنمنٹ آپ کے تاجروں سے لیتی ہے, متاثرین لوگوں سے لیتی ہے. بیروزگاری بہت زیادہ ہے, نوجوان بیروزگاری کا شکار ہیں. بہت سارے چیلنجوں کا سامنا ہے. رابطہ سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں. بہت سارے ایسی وادیاں ہیں, آبادیاں ہیں جن کو بحال کرنا ہے. ان سب کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح, کہاں سے شروع کریں گے؟ جی, جہاں تک 2005 کے زلزلہ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2005 کے زلزلہ میں ہمارا علاقہ مکمل طور پر تباہ ہوا, اور میں نے اس دن اسمبلی میں یہ بات کہی ہے کہ 15,000 لوگ ہماری تحصیل میں شہید ہوئے ہیں. جی, زخمیوں کی کوئی اندازہ ہی نہیں ہے, کوئی یعنی لاتعداد ہے, ان کا شمار کرنا ہی مشکل ہے. سارا سپر سٹرکچر جو لوگوں کا پرائیویٹ کوئی تھا یا سرکاری تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سڑکیں تھیں, جو واٹر سپلائی سکیمز تھیں, جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے بھی یہ علم میں ہے, اور پورے حلقہ کے, پوری تحصیل کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ میں تو پہلے جس دن زلزلہ ہوا ہے اس دن سے میں ان لوگوں کے ساتھ, متاثرین کے ساتھ رہا ہوں. پھر ہم نے وہاں پر ہمارے جو دوست تھے, ہم سب نے مل کر اس وقت بالاکوٹ بساؤ تحریک بنائی. اس تحریک کے پلیٹ فارم سے ہم یہ آواز, متاثرین کی آواز بلند کرتے رہے. اور آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ ایک وقت پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے متاثرین, اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے اسلام آباد گئے, اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اس وقت ہم نے مظاہرہ کیا, جس کے بعد ریڈ زون میں آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ
बालाकोट की यूनियन काउंसिल, जिस यूनियन काउंसिल में मैं रहता हूँ, यूनियन काउंसिल गल्लाट और यूनियन काउंसिल बालाकोट, इसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया था और इसमें तामीरात की इजाज़त भी नहीं थी। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सहूलतें नहीं दी जा रही थी। उस हमारे मुजाहरे के बाद थोड़ा बहुत कुछ उधर जो रोड वगैरह या वो कुछ बने, लेकिन वो भी उस तरह काम जिस तरह होना चाहिए था वो ना हो सका। जहाँ तक दीगर तहसील का ताल्लुक है, दीगर इलाकों का ताल्लुक है, तो स्कूल हमारे मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। जो BHUs थे, अस्पताल थे, बालाकोट का जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने ये उस दिन ये बात भी असम्बली में की कि पूरी तहसील में एक अस्पताल है और वो एक किराए की उसमें है इमारत में, और वो भी यानी डॉक्टरों के बैठने की जगह भी उसमें खतरे के लारों नहीं है। और पूरी तहसील से, बाकी मैं गया हूँ पूरे हल्के में गया हूँ, कहीं BHU RIC या डिस्पेंसरी है ही नहीं है। जहाँ है वहाँ डॉक्टर या कोई टेक्नीशियन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। सड़कें भी हैं, उन सड़कों की हालत भी कोई ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि सड़कें अच्छी हैं, सड़कें भी नहीं हैं। ये सारे बहुत से चैलेंजेस हैं जिस तरह आपने फरमाया, लेकिन उसमें इस तरह है कि जहाँ तक बालाकोट तहसील अस्पताल का तल्लुक है, तो मैं जब अल्लाह ने हमें कामयाबी नसीब की, उसके बाद जब मैं बालाकोट गया हूँ तो मैं CNW जो डॉक्टर साहिबान थे, ठेकेदार के लोग थे, उनको साथ लेकर बालाकोट गया हूँ। बालाकोट में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पोर्शन जो है जो ज़ेर तामीर बिल्डिंग है, उसका एक पोर्शन जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। और आपने ये नोट किया होगा कि अब उस पे काम इंशाल्लाह तेजी के साथ जारी है, ताकि हम हॉस्पिटल को उधर शिफ्ट कर सकें। ठीक हो गया जी। इसी तरह न्यू बालाकोट सिटी की आपने बात की। ये सारी चीज़ें, ये सारे आपके ये इल्म में है कि शिराज महमूद साहब का जो दरख्वास्त, अल्लाह मरहूम ने जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी थी, उस केस की पैरवी अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ भी दिया है कि उसकी पैरवी मैं ही करता रहा हूँ, आज तक मैं कर रहा हूँ। आज भी उसके तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है। तो दूसरा स्कूलों की बात थी, उसमें भी बालाकोट, न्यू बालाकोट सिटी में भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। और स्कूल जो तामीर हो, जो ज़िला में स्कूल तबाह हुए थे, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन में गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिए कि इन बिल्डिंग्स को फौरन तामीर किया जाए। तो अब हम इस पे काम कर रहे हैं कि जो स्कूल की इमारतें जिन इलाकों में जो ज़िलज़िला में जो इमारतें तबाह हुई हैं, वो दोबारा तामीर हों और उनको जल्द अज जल्द। उस दिन भी मैंने मिनिस्टर CNW से भी मैंने बात की है कि ये इमारतें फ़ौरन तामीर होनी चाहिए और इनके फंड रिलीज़ होने चाहिए। बाकी रोड जो हैं, ये अभी हम ADP पे भी काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो मेन हमारा फोकस है, जो है एक हम ये चाह रहे हैं कि तालीम के जो जितने स्कूल हैं ये मुकम्मल हों। आप देखें पूरे इसमें तहसील में एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, 12 यूनियन काउंसिल में। अब उस कॉलेज में भी मैंने इंफॉर्मेशन ली, अब मैंने प्रिंसिपल साहिबा से सारा रिकॉर्ड लिया है। BS की एक सब्जेक्ट की कोई क्लास है, बाकी नहीं है। इसी तरह उस गर्ल्स कॉलेज में फर्नीचर नहीं है। अब हमने उसको इस तरह किया है कि मैंने मिनिस्टर साहब, वो हमारे मीना खान साहब हैं, वो बड़ा मैं ये कहता हूँ कि बड़ा एफिशिएंट आदमी है, रिस्पांस देने वाला आदमी है। तो मैंने उससे बात की है कि इन बच्चियों के लिए कम से कम फर्नीचर तो होना चाहिए, BS की क्लासेस होनी चाहिए। इसी तरह डिग्री कॉलेज के मसाइल हैं, जो बॉयज़ है पोस्ट ग्रेजुएट उसके मसाइल हैं, कॉमर्स कॉलेज है हमारे पास, उसके मसाइल हैं, स्कूलों के तो ही हैं।
اس کے لیے میں نے انشاءاللہ اب یہ ہم کوشش کریں گے، پرنسپل صاحبان کو بھی بلا رہے ہیں، گرلز کالج کی پرنسپل صاحبہ کو بھی بلا رہے ہیں، ادھر HEC والوں کو بھی بلا رہے ہیں، تاکہ یہ مسائل ہم فوری طور پر حل کر سکیں. اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو ہفتہ آنے والا ہے اس میں اس سلسلے میں ہماری میٹنگ ہو کر یہ ہو جائیں گے. بہت شکریہ. آپ تو مسائل سے بہت سارے آگاہ ہیں، چونکہ لوکل ہیں اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر قانون دان بھی ہونا چاہیے. پھر ایک نقطے سے پہاڑ کھڑا کر لے، سوئی سے سوراخ بنا لے، باتوں میں آپ سے تو کوئی آگے نہیں جا سکتا نا. تو پریکٹیکل آپ بہت زیادہ تجربے کار ہیں. اب میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اتنا کچھ آپ معلومات رکھتے ہیں، صوبے میں آپ کی حکومت ہے اور آپ اتنے فنڈز، اتنا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، آپ کسی پلیٹ فارم سے کوئی ایسا احتجاج کر سکتے ہیں کہ میرا ضلع، میرا حلقہ تباہ ہوا ہے. دیکھیں یہ ایک دو باتیں جو میں نے کی ہیں آپ سے، میں تو وہ بات اللہ کے فضل سے کروں گا ہی نہیں جو کر نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے. نہ مجھے کوئی، یعنی مجھے لوگوں نے، میں نے کوئی کام بہت زیادہ نہیں کیے تھے کہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیے. جی. ووٹ لوگوں نے مجھے اپنی محبت سے دیے. اب میں ان لوگوں کے ساتھ جھوٹ، کم از کم جھوٹ نہیں بولوں گا. مادر کے ساتھ ووٹ آپ کو دو قسم کے ملے، ایک آپ کو پارٹی کے دیا، عمران خان کے ساتھ محبت کے، آپ کی شخصیت کا ملا، اور تیسرا ووٹ اس مخالفت کا ملا ہے کہ جب بڑے آپس میں لڑ رہے تو فائدہ تیسری کو جاتا ہے. یہ پالیٹکس میں ہوتا ہی یہی ہے، آپ کو مل گیا یعنی اس میں ہوتا ہی یہی ہے نا. ہوتا ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے پہ آتا ہے تو اس کے لیے اسباب بناتا ہے. تو یہ سارے اسباب ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی غیر متوقع جو بھی ہوتا ہے جس نے کامیاب اس کے لیے اسباب، اللہ تعالیٰ نے اسباب بنتے ہیں، اسباب بنے، وہ پارٹیز اللہ نے بنائے ہیں. اب عمران خان کے ساتھ اس میں شک نہیں ہے کہ لوگوں کی، اور عمران خان کے ساتھ محبت اس لیے تھی اس کے ساتھ کہ وہ جیل میں تھا اور اپنی بات پہ ڈٹا ہوا تھا. کم از کم وہ کسی کے سامنے جھکا نہیں ہے. ہمارا بھی اس کے ساتھ جانے کا یہی ہے کہ یہی بات تھی کہ وہ اپنی اس پر آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. ایک کرپٹ نہیں ہے، اس کرپشن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی بات پہ جو بات کرتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے، بزدل نہیں ہے. اچھا، وزیر اعلیٰ نے آپ کو وزارت کیوں نہیں دی جب اتنا متاثرہ علاقے سے آپ ہیں اور اتنا بڑا انویسٹمنٹ کرنے والا علاقہ ہے؟ دیکھیں اگر ہم میں نے آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ میں نے وزارت کے لیے کبھی کسی سے کوئی ریکویسٹ، یہ وزارتیں جو ملی ہیں میرٹ پہ ملی ہیں، اہلیت بھی ہیں، جو کچھ ہے ٹھیک ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میرٹ پہ نہیں ملی ہیں. یہ وہ لوگ پارٹی میں مجھ سے پہلے تھے، جو وزارتوں میں آئے ہیں مجھ سے پہلے وہ پارٹی میں تھے، میں پارٹی میں بعد میں آیا ہوں. اب پارٹی کا یا وزیر اعلیٰ صاحب کا یا عمران خان کا اپنا ایک ان کا شاید یہ معیار ہوگا کہ وہ لوگ پارٹی میں مجھ سے پہلے ہیں. کچھ لوگوں کی اس میں شک بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ قربانیاں بھی ٹھیک ہے. اچھا سوری سر، آگے وقت کی کمی کی باعث اب اور بہت ساری بات. تو وزارت کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اگر اللہ نے خدمت کرانی ہوگی تو اس کے لیے وزارت کی، یہی میری وزارت ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور سب نے مجھے عزت دی. اور اس پلیٹ فارم سے میں انشاءاللہ میں نے پہلی سپیچ میں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے اپنے علاقہ کی تقریباً ساری باتیں. اچھا سوری، ایک بات، یہ ذرا ویڈیو دیکھیں آپ کے قائد کی ہے، اس ویڈیو پہ ذرا غور کریں، اس کا جواب دے دیں. 2017 میں عمران خان نے جب اس علاقے کا وزٹ کیا، خاص کر VC منور کا، ایکشن کمیٹی کے صدر ہمارے ساتھ جبار خان بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا تھا کہ اس سال اس سڑک کو ہم کھولیں گے. 2017-2024 10 سال سے PTI کی صوبے میں حکومت ہے اور 30,000 کی آبادی متاثر ہے اور کھربوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اور نیا سیاحتی زون ہے اتنا خوبصورت کہ آپ کے قائد کہہ رہے ہیں کہ اس سیاحوں کے لیے کھولیں گے، اربوں روپے کی وہاں پہ آمدنی ہو سکتی ہے. ایک سڑک نہیں بن رہی، آپ اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اس طرح ہے، یہ اعزاز تو عمران خان کو ضرور جاتا ہے کہ یہ 2 سڑکیں جو آپ کی بن رہی ہیں 2 ویلیز میں، ایک منور ویلی میں اور دوسری گنول ویلی میں، یہ اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں. یہ سیاحتی علاقہ آج نہیں بنا، جب سے کائنات بنی ہے یہ سیاحتی علاقہ ہی تھا. 70 سال تک لوگوں نے ہم پہ حکومت کی مختلف ادوار میں، تو کسی نے یہ بات ذات سے باہر کوئی نہیں نکلا ہے. اب یہ اعزاز عمران خان کو جاتا ہے کہ اگر گنول والا یا آپ کا جو منور والا، یہ 2 روڈز بن جاتے ہیں
बन जाते हैं तो ये पूरी वैली ये एक नया बाब होगा और यानी बहुत बड़ा एक ये हमारे लिए टूरिज्म का एजाज भी होगा। अब आपने ये कहा कि ये बनी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? आपके ये इल्म में है कि आपके रोड में वो सर्वे का मसला पैदा हुआ, फिर एक जगह पे कुछ लोगों ने उस पे एतराज किया, जो मुकामी लोग थे, उस वजह से वो काम रुका। अब ये इंशाल्लाह उनके साथ हमारी मीटिंग हुई भी है। सॉरी सर, यहाँ पे एक बात मेरी भूल जाऊंगा, कोई ये जुबार खान इस चीज की गवाह है, पिछले पूरे 4 साल हमारी एक्शन कमेटी बनी हुई थी, कहीं भी कोई रुकावट किसी जमीन की अगर कहीं भी थी तो वो एक्शन कमेटी हल करती थी, वहां पे नहीं कोई मसला नहीं बना, वहां पे कोई मसला नहीं बना। सॉरी सर, मैं मादर के यानी साथ, काम सिर्फ उस ठेकेदार ने सिर्फ उस जगह को कटाई किया है, न उसके आगे कोई सेफ्टी लगाई है, न उसको तोसी की है, न उसकी तामीर की। वो कहता है मेरे पास फंड ही नहीं है, तो फिर उस सड़क का इस तरह फंड वाली बात भी है, फिर रुकावट हमारी नहीं है ना, फंड की रुकावट है ना। इब्तिदा में देखिए ना, इब्तिदा में रुकावट पैदा हुई है, और जब मैं अर्ज कर रहा हूं ना, जब एक दफा एक काम थोड़ा सा भी रुक जाए ना, फिर उसको दोबारा गाड़ी भी अगर बंद हो जाए ना, उसको स्टार्ट करने पे टाइम लगता है। चलिए आप किस तो अब इंशाल्लाह आप करेंगे ना, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि उस दिन जो हमारे मशीर हैं ये जायद खान साहब, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई है। अब हम इसको इंशाल्लाह ये तरजीही बुनियादों पे ये 2 रोड जो पपरंग रोड गुनूल में है और ये हमारी मनूर वाला जो रोड है, इसको हम इंशाल्लाह अपने द्वार में मुकम्मल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाए। नोट कर लीजिए नाज़रीन, उम्मीद है, उम्मीद नहीं यकीन है, उम्मीद भी है, यकीन भी है, हुकूमत भी आपकी है, इसमें कोई रुकावट नहीं हो। बिल्कुल, जो वसाइल में जो हमारे वसाइल हैं, लेकिन इसका तस्वीर का दूसरा रुख भी आप थोड़ा सा देख लें। हुकूमत हमारी है, लेकिन इस वक्त 300 अरब रुपया जो वफाकी गवर्नमेंट ने हमें देना है वो अभी नहीं दे रहे। हुकूमत तो नहीं, लड़ाई लड़ने की बात नहीं है, लड़ाई लड़ने की बात नहीं है। जो हमारे लोग कौमी असम्बली में हैं, उन्हें ये लड़ाई उधर लड़नी होगी, ये अपना ऐसा उधर से लेना होगा, वफाकी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करना होगा। लोगों ने देखे ना, सुबह ये असम्बली का वोट मुझे दिया है, तो कौमी का भी तो किसी को दिया है ना, या नहीं दिया? उनकी वो लड़ाई है, उनकी, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे सूबे के लिए। ये उस दिन वज़ीर आला ने भी कहा है, उधर जो हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं सूबाई असम्बली में, उन्होंने भी कहा है कि ये लड़ाई सूबे की लड़ाई सूबा सबका है, ये लड़ाई हम सब ने मिलकर, यहाँ पर पार्टी की बात भी नहीं है, यहाँ पर कोई बात नहीं है, ये लड़ाई सूबे के हकूक की है। अब मैं आपको अगली बात बताऊं। आपने सवाल किया कि ये 2 डैम्स हमारे इलाका में, सुखी किनारी और दूसरा बालाकोट डैम, ये दोनों डैम, लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं कि इन 2 डैम्स के जो गवर्नमेंट के उन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट हुए हैं, MOU हुए हैं, वो इस वक्त तक सामने नहीं ला रहे। आप कहने में भी नहीं है, मैं यही कह रहा हूं ना, मैंने अभी उनसे कहा है कि ये आपको सामने लाने होंगे, पड़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये इस तरह देखें कि ये सुखी किनारी है, ये 2016 में ये इस पे काम शुरू हुआ है, 8 साल गुजर गए, अभी तक वो एग्रीमेंट, वो MOU सामने नहीं है कि उसमें मुकामी लोगों की क्या को कंपनी ने लोगों के लिए क्या करने थे, वहां पर जो मुलाजमतें हैं या जो लेबर है, जो लोग भी हैं, वो अभी हमने ये इस पे ये बात कर रहे हैं कि हमारे नौजवान बेरोजगार क्यों फिर रहे हैं मुल्तान से, कश्मीर से लोग नौकरियां करते हैं, मुकामी लोग क्यों नहीं? ये हमने उनसे बात की है और इसको मजीद आगे लेकर अभी मेरा ये ख्याल है कि मैं असम्बली में भी इससे बात करूंगा, वज़ीर आला साहब से भी इस सिलसिले में बात करूंगा, इधर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इनके साथ पहले से मैंने ये बात की है। अच्छा सॉरी सर, एक बिजली का आपको पता है कितना यूनिट अभी आप दे रहे हैं? नहीं, और आप बिजली का मेरे ख्याल में इस वक्त 70 जी। हाँ, तो फिर उन्होंने कुर्बानी दी आजाद वालों ने, तो वो चले गए 3 रुपए पे, हम 70 दे रहे हैं। हमारी बिजली, हमारी जमीनें, हमारी नाशों से हमारे कब्रिस्तानों को मुस्मार करके बनाई जा रही है, तो इस पर आपने कभी सोचा? देखें इसके लिए भी ये
ये एक मैंने नहीं नहीं सोचा, सब सोच रहे हैं ना, जितने भी हैं इसमें भी हम सब ने मिलकर सोचना है, सोच रहे हैं। सब ने मिलकर मैंने ये मुख्तसर बात की है कि जो हकूक हैं सूबे के, फिर सूबे से या मरकज से हमारे इलाके के जो हकूक हैं, जिला के तहसील ठीक है, के, जिला के जो तहसील के जो हकूक हैं, ये जंग हम सब ने मिलकर लड़नी है। हम कोई मुसल्लह जंग नहीं कर रहे, हकूक की जंग है, इसमें हमने कानूनी जंग भी करनी है, इसके लिए हमने पुरअमन एहतजाज भी करना है, और ये सब कुछ और मैं अगली बात समझ गया करना है। मैं समझ गया कि आपने सरदार साहब की सियासत करनी है। अच्छा मुझे एक बात और बता दें, 400-500 से ज्यादा मेरे नोटिस में है जो क्लास 4 की असामियाँ आपके दौर में आपके सिग्नेचर के नीचे होंगे, वो सिफारशी होंगे या यानी पैसे वाले होंगे या साइड से हुक्म का तरीका होगा? मैं आपसे एक अर्ज करूं, मैं आपको इल्म है कि मैं वकील हूं, वो तो मैं भी समझ मेरा बहुत कोई अच्छे कोई आदमी हैं। कोई कोई लंबी ना मेरी कोई इंडस्ट्री बनाने की सोच है, ना जायदादें बनाने की सोच है। आपके इल्म में मैं ये मानसरा में किराए के मकान में रहता हूँ, ठीक है, ठीक है, ना खुददारी का सौदा किया है ना करूंगा। जो जितने दिन अपनी इस खुददारी को, अपनी इस इज्जत नफ्स को बाल रख कर अल्लाह ने तौफीक दी, लोगों की खिदमत करूंगा। जो 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 ये हैं आप मुलाजमतों का कह रहे हैं, क्लास 4 की जो क्लास 4 होते हैं, मैंने पहले ही, आप सबसे पूछ लें, मैंने पहले ही कहा है कि जो लोग दरखास्त दे रहे हैं वहाँ के मुअज्जिन बैठे, कमेटी बनाए, वो बताएं कौन सा इनमें बेहतर है या ज्यादा। देखें सब गरीब लोग इस वक्त, तो अफसोसनाक बात यह है कि एमएससी एमए, उस दिन में बालाकोट कॉलेज में गया, एक उधर क्लास 4 था, मुझे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ये बीएस है, एमएस या बीएस है। अब आप अंदाजा लें, एमएस या बीएस वो क्लास 4 के लिए अप्लाई कर रहा है। तो ये सारे लोग इनके लिए ये जो लोग हैं ना, सब काबिल, इनमें से मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। आप एसी साहिबा बालाकोट से पूछ लें, ये 10,000 रुपया जो गवर्नमेंट ने वो अभी देना था, उसने मुझे फोन किया कि आप लिस्ट दें। मैंने कहा कि ये सारा हल्का मेरा है, ठीक हो गया, आपके पास अदारे हैं, आप लिस्ट बना लें, जो लोग मुस्तहक हैं उनको दे दें। ठीक है, मैं आपको ये, लेकिन एक बात याद रखें कि किसी का हक मारकर दूसरे को न दें। अब आसान बात है ना, अब हक एक का बनता है, मैं अपने किसी अजीज, किसी अपने भाई, किसी अपने करीबी के लिए आपके इख्तियारात का आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नहीं मुझे करूंगा। यकीन है कि आप पढ़े लिखे भी हैं और आप एक कानून और इंसाफ को समझने वाले भी हैं। सर एक बात मुझे ये बताएं, ये इंतकालात की फीसों के मुतालिक आपको तो पता ही है, पूरे पाकिस्तान में 3 सूबों की अलग है, 5 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए, यहाँ 30 और 31 रुपए के हिसाब से क्यों लेते हैं? ये कभी आपने ये इस दफा आपने मेरी तकरीर सुनी है? अभी सुन लेंगे, देखे ना, उसमें ये बात की है आपको तो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए ठीक हो गया। कि असेंबली में पहली दफा अल्लाह के फजल से हमने उधर ये आवाज भी उठाई है, इस पे फिर वजाहत भी आई है, इस पे फिर उम्मीद लगती है कि कम होंगे। नहीं, मेरी बात सुन, यानी मैंने उनसे ये कहा है कि ये आपने 6% से जो 23% की है, ये आप सारा रिकॉर्ड मंगवा लें। जिस वक्त 6% थी उस वक्त गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा जाता था, अब कम जाता है। अब कम इसलिए जाता है कि अब ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। इस पे फिर दूसरे दिन परसों वजीर माल ने इस पे वजाहत की है, उसने ये कहा है कि इस 23% है, इसमें से 6% हमें आता है सूबे को, बाकी सारे मरकज के टैक्स हैं। और लेता है ना, मरकज सूबा नहीं लेते, पंजाब से क्यों नहीं लेते? सूबा नहीं, पंजाब में भी यही है, सूबा कलेक्टिंग अथॉरिटी है, सूबा कलेक्ट करता है, 15 उनका ऐसा वफाक कैसा उनको दे देते हैं, 6% इनका ये खुद रख लेते हैं। सूबा कलेक्शन ये करते हैं, टैक्स एक्साइज एंड टैक्सेशन वहां पे पड़ता है ना, वहां पे पड़ता है, लेकिन ये मरकज की हद तक मुतालबा पंजाब में ऐसा क्यों नहीं है ना, मरकज पंजाब में भी ये आप पता कर लें, मरकज की हद तक ये मुतालबा, ये टैक्स जो मरकज को जाते हैं, ये टैक्स कम करने का इख्तियार भी मरकज को है। ये कौमी असम्बली में ये बात उधर ये अभी हमने किया है, ये अभी गुस्तासफ खान से भी कहेंगे, सरदार साहब से भी कहेंगे कि ये बात उधर कौमी असम्बली में जिस तरह इधर सूबे में है, कौमी असम्बली में होनी चाहिए कि ये टैक्स कम करे, मिलकर ये बात करें। अच्छा सर, ये अटक पार से क्लास 4 आकर भर्ती होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, कैडीए में होते हैं, बाकी इदारों में होते हैं, ये इस पे भी आप लोगों ने कभी सोचा? देखें
ये जो अटक पार वाली बात है ना, इस तरह मैंने एक दफा सुबह हज़ारा की बात चली, तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लोग शहीद हुए और सुबह न बना और वजारतें और देखें ये और आज तक वो लोग जो शहीद हुए हैं उनका कोई पूछने वाला है? लेकिन तहरीक तो चल रही तो तहरीक को छोड़ें, वो दफन कर दिया, वो नजरिया उसका मेन फायदे के बजाय नुकसान हो गया। जिस वक्त सुबह हज़ारा की तारीख चल रही थी, आपके इल्म में है कि उस वक्त चीफ जस्टिस सूबे का हमारा मानसरे का था, चीफ सेक्रेटरी सूबे का हमारा हज़ारे का था, सेक्रेटरी हमारे हज़ारे के थे। इस वक्त आप इस वक्त पेशावर में जाए ना, आपका सेक्रेटरी तालीम हज़ारे का है, बहुत से सेक्रेटरी हमारे हज़ारे के हैं। अब ये अटक पार या इधर की बात नहीं, आसान बात से है कि क्लास फोर जो है, जिस इलाके में कोई इंस्टीट्यूशन है वहां का होगा। कहने सुनने वाली बात नहीं यूनिवर्सिटी देखिए अभी तो नहीं हो, अभी तो नहीं हुआ, हुआ है। अब इसके बाद अगर आपके खुसूसन मेरे हल्का में कोई क्लास 4 ऐसे अटक पार की बात नहीं है, किसी भी दूसरी जगह का नहीं होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया सर, आसान बात, कमी की बात। माधव साहब फिर कभी आपसे कीमती वक्त लेंगे। ये देखने वालों को क्या क्या पैगाम देंगे, जो कुछ आपने कहा, जिसमें कितनी बातें सामने आई हैं, लोगों ने सुनी है, देखिए बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे, ये किस तरह ये अपने तहसील बालाकोट के जो मुतासरीन हैं उनको किस तरह आप सर्टिफाइड करेंगे, उस पैगाम को जरा देखें। ये अभी हमारा सफर शुरू हुआ है, एक इजलास हुआ है जो अभी असेंबली का, उस इजलास में मेरी जो इस्तिताअत थी, मैंने इंशाल्लाह अपनी आवाज़ बुलंद की है। मेरी लोगों से ये एक पैगाम है सबके लिए कि जिस तरह पहले मेरे साथ ताउन किया है, मोहब्बत की है, वोट दिए हैं, टीम वर्क किया है, इसके बाद भी टीम वर्क ही होगा। मुझे इन लोगों की, अल्लाह ताला की और इन अवाम की, जो हमारे मुअज्जिन हैं, जो बड़े बड़े देखें, मेंबर में हूँ, सूबाई असम्बली का मेंबर, अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी मुझे दे दी, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में, उन सब की रहनुमाई की और उनकी मुशावरत की मुझे ज़रूरत होगी, ताकि वो मेरी रहनुमाई करें। हम एक टीम की सूरत में जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे सिर्फ एक बात में मैं आप इसको ख़त्म करता हूँ कि मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। जिस वक्त लोगों ने मुझे मजबूर किया, मुअज्जिन ने किया, पीटीआई के लोग आए, मजबूर किया, तो मैं मानसरा आया हूँ। मैंने इशा की नमाज अपनी मस्जिद में पढ़ी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, अगर आपकी मशीयत ये है कि इसमें लोगों की कोई खिदमत है, तो मुझे इलेक्शन में लाना भी और मुझे कामयाब भी करना, अगर नहीं है तो मुझे इससे दूर रखना। उसके बाद जब अल्लाह ने मुझे इलेक्शन में लाया है, फिर मेरे लिए आसानी पैदा की है, फिर मुझे कामयाब किया है, तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि ज़रूर अल्लाह की कोई मर्जी है कि मुझसे इन लोगों के लिए कोई काम लेगा। तो इंशाल्लाह हम ये काम इंशाल्लाह होगा और ये मसाइल इंशाल्लाह हल होंगे। बहुत शुक्रिया जी, ये थे मुनीर खान एडवोकेट। बड़ी खूबसूरत बातें हुई, बहुत सारी बेतकल्लुफ़ बातें हुई। मादर के साथ कोई बात अगर किसी को अच्छी ना लगे तो वहीं पे उसको ख़त्म कर दें। मैंने उन्हें बहुत खूबसूरत एक पैगाम दिया है कि मेरे कोई खुफिया रास्ते नहीं है, कोई साइड बिजनेस भी नहीं है, कच्चे घर में रहता था, किराए के मकान में रहता हूँ, खिदमत के लिए आया और ख़िदमत करूँगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही फिर किसी सफ़र में इनकी खिदमत के चर्चे भी सामने आ जाएंगे, अगर कुछ ना कर सके तो वो भी सामने आ जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।